Good morning, students. We are discussing utility devices. Hope you might have got some idea about the utility device being used in the first and second poem, that is Mother at 66 and elementary school classroom in a slum. So let's move on to the third chapter, that is Keeping Quiet. We discussed the poem in the classroom the last day. Hope you all got the idea about the poem. Let's see what are the common utility devices being used in the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. So we can see the poem. Many alliterations are used. We will. It's used there. So WW का V का consonant word use किया गया है. There is alliteration. Once on the face of the earth. Once on O repeat हो रहा है. That is alliteration. We would consonant है. We would. फिर his hurt hands. लास्ट लाइन पैराग्राफ का थर्ड पैराग्राफ का लास्ट लाइन. उसके पहले थर्ड पैराग्राफ में इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट टेंशन. वी वुड में वापस अलिट्रेशन आया है. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस. अलिट्रेशन सडन स्ट्रेंजनेस में भी ऐसा. तो वंस अगेन दोस हु डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज अलिट्रेशन, let me explain to you. When the consonant words are repeated, sounds are repeated in the beginning of the starting sentence. मतलब consonant sentence चले किसी word का starting में consonant word जैसे sudden strangers s repeat हुआ है, इसको alliteration कहते हैं. When the words are repeated, it is repetition. When the first word is repeated, it is alliteration. तो sudden strangers में alliteration है. His next paragraph, fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. H का repeat हो रहा है, इधर भी वही है. फिर next page में those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with not survivors would put on clean clothes. उधर भी क्या हो रहा है? Clean clothes. There is alliteration. Walk with their brothers in the shade doing nothing. What I want. What उसमें भी alliteration हो रहा है. Should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want not track with death. इस सब और कुछ नहीं है लगता है. Alliteration इतना ही है. Now we move on to repetition. Repetition कहाँ हुआ है? Hope you might have got second paragraph, second line. So third paragraph you can say without rush, without engine. The word without is been repeated, so उसमें repetition आ रहा है. अगला पेज में those who prepare green wars with gas, wars with fire, उधर भी repetition हो रहा है. Wars with gas. फिर देखो count to 12 first time. Count to 12 and we'll all keep still. It is antithesis. मतलब बोलना और इसका opposite हो रहा है. Antithesis मतलब he is telling that will जो होने वाला will all count मतलब everywhere that is movement, but हमें still रहने के लिए बोल रहा है और count करेगा और उसका opposite करने के लिए बोल रहा है. That is still रहने के लिए. तो that is antithesis. Okay. Antithesis मतलब person or thing that is simply contrasting, opposite, contrasting idea. जैसे इसमें मूवमेंट है बट स्टिल रहने के लिए बोला देयर इज कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया. दैट इज एंटीथेसिस. फिर इमेजरी, कुछ कोल्ड सी का इमेजिनेशन आ रहा है हमारे इसमें. इमेजरी द कोल्ड सी, दैट इज इन द फोर्थ पैराग्राफ फर्स्ट वीक. कोल्ड सी, फिशरमैन इन द कोल्ड सी बोलते हैं, हमें कोल्ड सी का इमेजिनेशन आ रहा है, इमेजरी. फिर कुछ जैसे आपको मालूम है मेटाफोर के बिना कोई पोएम होता ही नहीं है. पोएट मेटाफोर होता है. इन द शेड कौन सा लाइन में आ रहा है? सेकंड पेज में फोर्थ पैराग्राफ लास्ट में. इन द शेड मतलब किस तरह शेड कंपेयर किया है. जस्ट एज अ शेड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन,
वी विल प्रोटेक्ट द शेल्टर ईच अदर एज ब्रदर्स, हम आपको इस शेड में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेगा, इसके लिए कंपेयर किया गया है शेड के लिए। फिर क्लीन क्लोथ सिंपल है पीस का, पीस एंड चेंज इन थिंकिंग, पीस मतलब वार का छोड़ के क्लीन क्लोथ पहनना, इसका मतलब है या इट सिंपलाइजेस पीस एंड चेंज इन थिंकिंग। और फिर कहाँ है मेटाफोर, फिशरमैन, इधर फिशरमैन को यूज किया गया ऐसे सिंपल ऑफ पीपल या हु ऑप्रेस द अदर्स, किसको परेशान पीड़ा देते हैं उसको लिए फिशरमैन यूज किया है। और वेल सिंबलाइजेस दोज हु फेस द ऑपरेशन, तो ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर के लिए यूज किया गया फिशरमैन एंड वेल। फिर दूसरा एक लिटरेरी डिवाइस यूज किया है मेटाफोर एग्जैक्टली, अर्थ कैन टीच अस, लास्ट में है अर्थ। अर्थ को देखो नॉर्मली टीचिंग या टीच करना तो ह्यूमन बींग्स करते हैं, बट इधर अर्थ टीच करेगा बोले तो अर्थ इज गिवन द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, तो इट इज पर्सोनिफिकेशन किया, अर्थ का पर्सोनिफिकेशन हुआ है। फिर और कौन सा है ब्रदर्स, इधर हमें कौन सा लाइन में, सेकेंड पेज में सॉरी 1 2 3 4 फिफ्थ पैराग्राफ, those who prepare green vase with gas, vase with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers। इधर ब्रदर्स एक मैनकाइंड का सिंबल बन रहा है, इट रिफ्लेक्ट मतलब है कि एक मैनकाइंड का सिंबलाइजेशन हो रहा है। दीज आर द जनरल लिटरेरी डिवाइस बीन यूज्ड हियर। और कुछ है, लेट्स सी। इन द शेड मेटाफोर है, क्लीन क्लोथ मेटाफोर है, अर्थ में पर्सोनिफिकेशन है। काउंट टू 12, देखो काउंट टू 12, काउंट 12 के लिए करना है, तो इसमें पॉइंट सिंपलाइजिंग द टाइम, टाइम के लिए यूज किया उधर, ठीक है, सिंपलाइजेस मेजर ऑफ टाइम। और बाकी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग द लिटरेरी डिवाइसेस यू मे आस्क मी, ज्यादा लिटरेरी डिवाइस नहीं है इस पोएम में, तो just remember the poet's name Pablo Neruda। So let's move on to the next poem, that is Thing of Beauty। If anybody is finding difficulty in understanding this through the online classes, once the class is start our class, I'll explain to you in the classroom clearly, clearing all your doubts. Each and everyone's doubt will be cleared, so don't worry। इसमें Thing of Beauty, another beautiful poem by John Keats। Okay, so just try to remember the poet's name now itself so that it will not be a burden later on। Of course चीजों को प्लीज छोटे छोटे चीजों को भी ध्यान देना। A thing of beauty is a joy forever। There are, first of all let me introduce to you the different metaphors used in this poem। A bower quiet मतलब a shady place for us, so it symbolizes a shady place, a bower, that is fourth line में Thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us। bower मतलब एक shady place, तो bower metaphorically एक shady place के लिए resemble कर रहा है। refers to a quiet shady part of the garden। sweet dreams, इधर एक sweet dream बोला next line में, and a sleep full of sweet dreams, sweet dreams मतलब हैप्पी ड्रीम्स। आप नेचर से जुड़े रहेगा तो यू विल बी ऑलवेज हैविंग स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम मतलब गुड ड्रीम्स, तो गुड ड्रीम्स के लिए मेटाफोरिकली बता रखा है। वेल इसका नेक्स्ट लाइन नहीं, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीथिंग मतलब कवर्ड, तो रीथिंग ए फ्लावरी बैंड मीन्स कनेक्टिंग टू नेचर, हमें बांध कर रखता है, नेचर से कनेक्ट करते हैं, तो इसका मेटाफोरिकली यूज कनेक्टिंग टू नेचर के लिए यूज किया गया वर्ड है रीथिंग टू नेचर। उसके बाद आर वी रीथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ इन स्पाइट ऑफ डेस्पेंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेप्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटाफोर कवर करते हैं, उसके बाद बाकी देखा। ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन डेज
made up for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. Pall एक sadness है, एक covering like a shroud, मतलब डेड बॉडी के ऊपर रखने वाला लाल कपड़ा इस तरह का है, तो pall resembles या symbolizes the covering like a shroud, नेगेटिव साइन है, डार्कनेस ये मतलब gloominess. Now last, towards last, for simple sheep and such a daffodils in the green world they live on clear leaves stand for themselves a cooling covered. Last में endless fountain of immortal drink, endless fountain of immortal drink, ये natural thing of beautiful, तो मतलब नेचर का ब्यूटीफुल थिंग और माइटी डेड के लिए बारे में बता रहा है. डीड्स ऑफ ग्रेट मैन एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, दोनों के लिए बता रखा है ये एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. दैट इज आल्सो मेटाफोर हियर. सो लेट्स सी अलिटरेशंस कहाँ का यूज किया. लेट्स सी. तो होप मेटाफोर इज क्लियर फॉर यू. कहाँ का है लास्ट में एंडलेस फाउंटेन में. ये एंडलेस फाउंटेन किसके लिए यूज किया है? फॉर द इट इज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम और भगवान हेवन से हमें ब्लेसिंग्स के रूप में दी गया चीज है ये थिंग ऑफ ब्यूटी एंड दी माइटी डेड, इन दोनों के लिए यूज किया वो इधर. देन alliterations where it is used, noble natures, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9th line में noble natures, and repeat or n word, consonant word, noble natures. cooling coverts के पहले है क्या? नेक्स्ट पेज में for simple sheep and such a daffodils this green world they live in and the clear leaves are for themselves a cooling covered. C is repeated, so it is cooling covered में D alliteration है. band to bind 1 2 3 4 5 6 7th line में band to bind, इसमें भी alliteration है. फिर कौन सा में है? स्प्राउटिंग है शेडी नहीं, स्प्राउटिंग शुरू करो. सिंपल शीप एंड सच, इसमें भी अलिटरेशन है. सिंपल शीप एंड सच का डैफोडिल अलिटरेशन. फिर ये इतना अलिटरेशन है. कुछ इमेजिनेशन का कुछ चीजें इसमें यूज किया. इमेजरी फ्लावरी बैंड का इमेजरी सिंपल यूज किया गया है. फ्लावरी बैंड दैट इज 6 7 लाइन में इमेजरी फ्लावरी बैंड. आपकी पॉइंट पढ़ते एक फ्लावरी बैंड का इमेजिनेशन हमारे माइंड में आ जाएगा. शेडी बून एक इमेजरी है. क्लियर रिल्स का इमेजिनेशन आ जाएगा. डैफोडिल्स फ्लावर्स, डैफोडिल्स का इमेजिनेशन आ जाएगा हमारे में. कूलिंग कवर्ड का भी एक कवरिंग शेडी प्लेस का हमारे माइंड में इमेजरी आता है. एक और फिर है एंडलेस फाउंटेन, एक फाउंटेन की इमेजरी लाया गया, पॉइंट में लाया है. ग्रैंडियर ऑफ डूम का ग्रेटनेस का इमेजरी लाया गया. एंड कुछ सिंपल यूज किया इसमें. सिंपल शीप के लिए शीप एक्चुअली ये पोएम में भी है ना, इट इज इसमें जॉन की किसी कैरेक्टर है जो किसी औरत से प्यार हो जाता है, फिर बाद में वो एक बिना जाने मतलब देयर इज समथिंग लव स्टोरी है इसके पीछे. इसमें एक सिंपल शीप का रेफर्स टू मैनकाइंड. ज्यादातर आपने बाइबल का कैरेक्टर देखा होगा. जीसस क्राइस्ट इज नॉन एज कैरेक्टराइज्ड एज अ शेपर्ड. तो शेपर्ड शीप को ले जाता है इस तरफ. इधर सिंपल शीप मैनकाइंड के लिए एक सिंबल जैसा यूज किया गया. सिंबल मतलब SYMBOL, शीप का सिंबल यूज किया गया इधर ऐसे मैनकाइंड का रेफरेंस के लिए. देन ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब एनी वर्ड, नया लिटरेरी डिवाइस है. ट्रांसफर्ड एपिथेट ए वर्ड और फ्रेज अप्लाइड टू अ पर्सन टू डिस्क्राइब इट्स क्वालिटी. जैसे बैड बॉय, गुड बॉय, इस तरह इधर डेज के लिए ग्लूमी डेज, तो ग्लूमी है एपिथेट है वो डेज के लिए मेंशन करके, इसलिए ट्रांसफर्ड एपिथेट. इट्स एन एडजेक्टिव वर्ड टू डिस्क्राइब थिंग और ए पर्सन. तो इधर डेज के लिए क्या बता रहा है? ग्लूमी डेज, ग्लूमिनस डेज के लिए ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट. अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन, अनहेल्थी और ओवर डार्कन वेज,
तो उधर भी एपिथेट मतलब एडजेक्टिव दैट इज डिस्क्रिप्शन उस चीज के लिए ट्रांसफर हो रहा है. तो ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड राइट इट हियर. The word epithet literally means it's a phrase applied to describe person's quality. तो ये ट्रांसफर हो रहा है, देखो जैसे ग्लूमी डेज में डेज के लिए ट्रांसफर हो रहा है वो. एंड देन ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन मतलब इट्स ए लिटरेरी डिवाइस. आपने इसमें पहले नहीं देखा होगा, ऑक्सीमोरन सुना नहीं होगा. टू कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग है. जैसे माइटी, बहुत माइटी, इसमें पोएम में माइटी डेड बोल रहा है. माइटी इज ग्रेटनेस बट डेड मर गया. तो माइटी डेड दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड साथ साथ आ जाता है, एक लाइन में आ जाता है, तो ऑक्सीमोरन कहते हैं. वर्ड्स टू डिफरेंट मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग. माइटी मतलब ग्रेट है बट डेड हो जाता है, मर गया. So that is oxymoron. And right one. Oxymoron. So these are the literary devices being used. Oxymoron का समझ में आया. Contrasting meaning. Mighty. Great people के लिए बता रहा है mighty और dead. Mighty greatness है, dead इसका opposite रहेगा, मर गया. तो it is oxymoron भी use किए. These are general literary devices being used here. Sir, one more thing I forgot to mention. I already class लेते समय समझाया था आपको. ये कीपिंग क्वाइट पोएम में जस्ट नोट, जो ऑलरेडी आपका पिछले साल का एग्जाम में आया था, सेकंड पैराग्राफ में फन यूज किया गया. सेकंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन में आर्म्स. एक ही चीज का दो, एक लिटरेटिव और फिगरेटिव मीनिंग है, तो इसके लिए आर्म्स कहते हैं. आर्म्स इधर लिटरेरी मीनिंग है द हैंड्स, और फिगरेटिव इधर आर्म्स वेपन्स के लिए भी यूज करते हैं. सब फन यूज किया गया. So, my dear students, please understand the literary devices being used here and try to understand it. Just spare a little time to think about it and just ask the doubts if you're having any regarding the same. So, just go through it and thank you. Have a nice day.